احبار کی کتاب اور اس کا باب نمبر ہم خدا کے پاک کلام سے پڑھیں گے، چوتھا باب اس کی پہلی جو آیت ہے 7 آیت ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ تو خدا کے خادم و ریاض صاحب سے درخواست ہے وہ آئے اور خدا کے پاک کلام کو تلاوت کریں۔ کلام مقدس میں سے آج کا ہمارے لیے زندہ لاسانی لا تبدیل کلام احبار کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی پہلی 7 آیات کو ہم قرآن کے حضور میں پڑھیں گے۔ تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے دانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوگندی قربانی کے مذبح پہ پایا، پھر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل گئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، خدا پاک کو برکت دے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو خدا کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، اس حوالے میں خطا کی جو قربانی ہے اس کے بارے یہاں بتایا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی سے جو خدا نے حکم دیے ہیں ان میں سے کوئی حکم توڑے، اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادستہ خطا ہو جائے، اگر کہیں ممسوح ایسی قربانی کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر خادم جو ممسوح ہے اس کے وسیلہ سے بھی خطا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ایک بے عیب بچڑا لے اور وہ خداوند کے حضور اس کی قربانی کرے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر آج کا جس کا دور ہے، اگر میں خدا کا خادم اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو ایک بچڑا جو ہے وہ مجھے اپنی خطا کے لیے خدا کے دور قربان کرنا پڑتا۔
तो पुराने अहदनामे में खादम को ये कुर्बानी देनी पड़ती ताकि उसका गुनाह माफ किया जाए। अगर वो कुर्बानी ना देता तो जब वो खुदा की हैकल में जब वो दाखिल होता है पाक मुकाम में, तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। और मेरे सिद्धो, आज हम इस बात को सीखें कि कुर्बानी जो है, पहले पुराने अहद में बकरों बछड़ों और बकरों की कुर्बानी दी जाती थी। इंसान अपने जब गुनाह करता तो कुर्बान बकरे या बछड़े को होना पड़ता था। और खता कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। और दुख कौन बर्दाश्त कर रहा है? कुर्बान कौन हो रहा है? उसकी जगह से गुनाह कैसे बकरा या बछड़ा या गाय या बैल कुर्बान होती थी। तो आगे यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम इसी तरह, किस तरह इसको हम देखते हैं कि आगे जब खून उसका लिया जाता है तो लिखा है कि क्या करें, खून में अपनी उंगली डुबोकर मकदस के पर्दे के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। कितनी बार? 7 बार खुदावंद के सामने छिड़के। आज हम इस तेल और पानी को मसा करते हैं। पहले खुदा के सामने बकरों या बछड़ों का खून लेकर छिड़का जाता था और वो हमें खलासी नहीं देता था। आज इसी तेल और पानी को मसा करते हैं, हम घरों में छिड़कते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने आप को मसा करते हैं। हालेलुया। कितनी बार वो छिड़कता है? 7 बार। बार किसी शख्स को कहा जाएगा कि भाई 7 बार चर्च आए, वो 7 बार आना नहीं पसंद करता। 7 बार चर्च आने का मकसद है कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये आयत है, खुदा ने भी हुक्म दिया अपने बंदा को कि मकदस के पर्दे के ऊपर कितनी बार? 7 बार खून छिड़क। जब हम भी अपना दिल लेकर खुदा के दिन 7 बार आते हैं तो खुदा का ये मस्सा का खून पीते हैं, लगाते हैं, तो हमारी खता गलती की माफ़ी मिल जाती है और खुदा हमें अपने पाप खून के वसीला से शिफा देता है। हालेलुया। तो फिर क्या करना है इस कुर्बानी के बारे में कहिए। फिर वो खुदा की कुर्बानी के बछड़े के ये 8वीं आयत है। खुदा की कुर्बानी का जो बछड़ा है, सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी चर्बी से इंद्रियां ढकी रहती है और सब चर्बी और इंद्रियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, जीगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सभी को वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहे की बछड़े से वो लग किए जाते हैं। और कह वो सौंपती कुर्बानी के मज़े पर जलाए और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सार और पाए, इंद्रियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह पर जहाँ राख पड़ी रहती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाया जाए और वही जलाया जाए जहाँ राख डाली जाती है। तो क्या करना, ये सारा बछड़ा जहाँ मकाम था इज्तिमा में कुर्बानी का, तो वहाँ रखकर लकड़ियों पर ये गोश्त जलाया जाता था। तो तब जाकर उस जो कहन था खुदा का महसूस था, उसकी माफ़ी होती थी। क्या थी? उसकी माफ़ी होती थी। इसी तरह मेरे चीज़ों आगे जो हम कुर्बानी पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं 13वीं आयत में, अगर बनी इस्राएल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमात की आंखों से छुपी हो, तो वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है
किसी काम को करके मुजरम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार वो मालूम हो जाए, बात जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमा इज्तिमा के सामने लाए। यहाँ पर जमात है, जैसे ये जमात है, इसमें भी किसी खता बात ऐसी बात जो सबसे खता हो जाती है, तो खुदा के खिलाफ अगर जमात में भी मुकम्मल जमात से खता हो जाए तो फिर भी वो क्या करे, एक कुर्बानी के लिए या बल्कि एक बछड़ा कुर्बानी के लिए लेकर आए और जमात के बुजुर्ग अपना अपना हाथ खुदा के आगे उस बछड़े के सर पर रखे। जब बछड़ा होता था तो खुदा के जो बुजुर्ग थे उस पर हाथ रखते थे, यानी कि वो अपने गुनाह बछड़े के ऊपर डाल देते थे। तो आगे लिखा है 18वीं आयत में, और उसी खून में से मदबे के सीनों पर खुदा के आगे खैमा इज्तिमा पर लगाए, बाकी सारा खून सोख्तनी कुर्बानी के मदबे के पाए पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है डेल दी, और उसकी सब चर्बी उससे लग करके उसे मदबे पर जलाए। वो बछड़े से यही करे, यानी जो खुदा की कुर्बानी के बछड़े से किया गया था कोई इस बछड़े से करे, यूं कह उनके लिए कफारा दे तो उन्हें माफी मिलेगी। क्या करे उनके लिए, कफारा दे, यूं उन्हें क्या मिलेगी, माफी मिलेगी। यानी अगर बछड़ा खुदा के लिए नहीं कुर्बान किया गया तो खुदा के कलाम लिखा उसे माफी भी नहीं मिलेगी। देखो गुनाह की कुर्बानी के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती थी। आज अगर एक बछड़ा खरीदा जाए तो मेरा ख्याल है 70,000 या 80,000 का होगा। यहाँ पर भी आगे हम देखते हैं कुर्बानी के बारे, और जब 22 आयत में, और जब किसी सरदार से खता सरदर्द हो तो वो इन कामों में से जिन्हें खुदा ने मना किया है, किसी काम को नादास्ता कर बैठे और वो मुजरम हो जाए। क्या हो जाए वो, अगर कोई सरदार पता किसे कहते थे, बड़ी इसराइल कौम में कुछ लोग सरदार थे। मिसाल के तौर पर इस जमात में से हम किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं कि ये बंदा 100 आदमियों पर सरदार है, अगर सरदार से भी खता हो जाए तो उसे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो सरदार है या वो कहन है, उसे माफी है। सरदार को भी और कहन को भी क्या देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, और जमात को भी कुर्बानी देनी पड़ती थी। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं सरदार के बारे, और जब वो खुदा जो उससे सरदर्द हुई उसे बता दी जाए तो वो एक बकरा और अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए। एक बकरा क्या करे, अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए। यहाँ पर बकरे का जिक्र, सरदार को हुक्म मिला अगर उससे खता हो गई है तो वो बकरा लेकर आए। क्या लेकर आए, बकरा, और अपना हाथ बकरे के सर पर रखे। अपना हाथ क्या करे, बकरे के सर पर रखे, यानी कि गुनाह किया है आदमी ने, सरदार ने, और सजा कौन भुगत रहा है, बकरा। सरदार अपना हाथ बकरे पर रखता है तो वो उसका गुनाह बकरे पर चला जाता है। वो अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे और उसे उस जगह ज़बह करे जहाँ सोख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदा के हजूर ज़बह करते हैं।
یہ خدا کی قربانی ہے. کہاں ذبح کرے؟ جہاں خدا کا دور کیا کرتے ہیں؟ قربانی کراتے ہیں، وہاں جا کر اسے ذبح کرے تو یہ خدا کی قربانی ہے. اور غیر خدا کی قربانی قربانی کے مذبح کے سنگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون سوکھتی قربانی کے مذبح کے پایا پر ڈال دے اور سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کی طرح اس سب چربی مذبح پر چلائے. کیوں کہ اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی. اسے کیا ملے گی؟ معافی ملے گی. یعنی کہ اگر سردار کہر بھی خطا کرتا ہے اسے بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر جماعت خطا کرتی ہے اسے بھی قربانی کے لیے بکرے بچے لانے پڑتے ہیں. اگر کوئی سردار جو ہے اسرائیل میں سے وہ بھی گناہ یا خطا کرتا ہے اسے بھی خدا کا دور بکرا لانا پڑتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں بات کیا اور بکروں بچڑوں کا خون لے کر نہیں. 11 سے پڑھیں گے 11ویں آیت سے. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا ہے. ہاللیلویہ. سردار کون ہے؟ کہن کون ہے؟ سب بولے یسوع مسیح. کون ہے؟ جب یسوع مسیح اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ دار کو کامل در خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، اپنی خلاصی کرائی. ہاللیلویہ. یسوع کے خون کے لیے زوردار تالی بجائیں. ہاللیلویہ. یعنی کہ یسوع مسیح نے قربانیاں بکروں یا بچڑوں کو لے کر باپ کے پاس نہیں گیا. پھر غور سے سنے اور بکروں بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی کیا ہے؟ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک بار داخل ہو گیا تاکہ اپنی خلاصی کرائے. اپنی خلاصی کرائے. آج یسوع نے ہماری اپنی اپنے پاک خون سے کروا دی ہے. ہاللیلویہ. آج ہمیں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر یا انہیں بچوں کو لے کر ہیکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم یسوع کے پاس خون سے خرید چکے ہیں. آج ہمیں یسوع مسیح اپنے پاس بلاتا ہے. کہتا بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا کیونکہ میں نے تمہاری جانوں کے لیے اپنا پاک خون قربان کیا ہے، بہا دیا ہے. اور جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع نے اپنے پاک خون کو ہمارے لیے قربان کر دیا ہے. آج ہم سے یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہ قبول کریں. اپنے گناہوں کو لے کر یسوع کے پاس آ جائیں. وہ بڑا جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. آج ہم اس کے پاس اپنا دل لے کر آ جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی خلاصی کرائے. آگے لکھا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی نپاکوں پر چھڑکے جانے سے ساری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. آمین. ہاللیلویہ. دیکھو میرے عزیزو یسوع مسیح کا بے عیب خون جو ہمارے لیے قربان ہوا ہے تو کیوں نہ ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے چھٹکارا دے گا کہ ہم زندہ خدا کی کیا کریں، اس کی
इबादत करें। हम जब तक बेऐब खून से धुल नहीं जाएंगे, जब तक बेऐब खून को अपने अंदर नहीं लेंगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे, तो मेरे चीजों कभी भी हम बेऐब जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्योंकि गुनाह से आजाद करने वाली एक ही हस्ती है जो बेऐब है। पहले खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। जब खुदा ने भेजा अपने बेटे को जमीन पर, तो मेरे चीजों शुरू से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले लोग कुर्बानियां अपने बच्चों की देते थे। मैं आपको बता दूं कि इंसान गुनाह करता है और कुर्बानी कौन देता है? जानवर की कुर्बानी होती है। ये मुकम्मल कीमत नहीं है, और ये हमारा मुकम्मल, हम इंसान हैं, इंसान की कीमत जानवर हो सकता है? अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता किसी से कत्ल हो जाए, तो वो ये कहे कि मैंने तेरे बेटे को मार दिया, ऐसा कर, मैं तुझे बछड़ा दे देता हूँ, तू मेरे बछड़े को हलाक कर दे, या ये बदला पूरा हो जाएगा पूरा? मेरे चीजों, इंसान इसलिए नहीं आजाद हो सकता था क्योंकि वो बछड़ों का, बकरों का खून की कुर्बानी को आजाद नहीं हो सका। आजाद होने के लिए एक बेऐब इंसान की जरूरत थी, और वो इंसान जो पाक हो और वो इंसान हो, जानवर ना हो। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा जो कामल इंसान था। क्या था? कामल इंसान था। सोता था, यीशु खाता था, चलता था। इसलिए एक गुनाहगार इंसान को बचाने के लिए एक रास्ता इंसान की जरूरत थी, एक रास्ता कुर्बानी की जरूरत थी, एक बेऐब कुर्बानी की जरूरत थी। इसलिए खुदा ने ये देखा कि इंसान आजाद नहीं हो रहा, उसने हमारे गुनाहों की खातिर एक बेऐब बरा यीशु मसीह जमीन पर भेजा, ताकि हमें क्या करे? गुनाहों से आजाद कर दे। वो बेऐब बरे ने सलीब पर आकर कुर्बानी दी, और उसके कुर्बानी के वसीला से उसने पूरी उम्मत को आजाद कर दिया। हालेलुया। ये जो हम बादशाह की जो ये हम दावत जो इसमें शामिल होते हैं, ये हमें ये चीज याद दिलाती है कि हमारा यीशु बेऐब था, हम उसके पास से खरीदे लोग हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। तो खुदा यीशु मसीह ने वादा किया है, जो मेरा खून और मेरा गोश्त खाता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। तो मेरे चीजों, यीशु मसीह का जो खून जो गोश्त है, इसमें जिंदगी है। तो ये भी लिखा है कि जब तक मैं ना आऊं, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ये यीशु मसीह की यादगारी है कि हमारे गुनाहों की खातिर एक बेबरा सलीब पर कुर्बान हुआ है। तो क्यों ना हम अपनी गंदी जिंदगी को लेकर, गुनाह भरी जिंदगी को लेकर अपने यीशु मसीह के पास आए। कोई बकरा, कोई बछड़े की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, वो आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, वो आपकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना देगा। यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है, उसने अपनी बात जान को कुर्बान कर दिया है। तो क्यों ना हम उस कुर्बानी से आसूदा हो, खुशहाल जिंदगी गुजारें। मेरे चीजों, हमारे रगों में जो खून है, ये गुनाह का खून है। जब यीशु मसीह कुर्बानी में आप शामिल होंगे, तो यीशु मसीह जिंदा है, आप जिंदगी पाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत जिंदगी पाए। तो